Okay, students, now we will start chapter breathing and exchange of gases. Before that, if you have any doubt, you can ask. Breathing and exchange of gases. कोई doubt? Yes. So, in breathing and exchange of gases, first in introduction part, we are going to discuss what is breathing, what is respiration, what are the respiratory organs in different animals, then human respiratory system. Okay. So when we talk about just breathing means exchange of gases between atmosphere and lungs. It is just the exchange of gases between atmosphere and lungs. Whereas most of us think what's respiration and breathing are synonym, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ब्रीथिंग अलग चीज है, रेस्पिरेशन अलग चीज है. ब्रीथिंग का मतलब होगा exchange of gases between atmosphere and lungs. एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग, राइट. एंड आल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, वेंटिलेशन. And one breathing include one inhalation and one exhalation. When you take air inside, that is inhalation. When you remove the air, that is exhalation. तो ये दोनों मिलाकर एक breathing होगा. One inhalation plus one exhalation. This is combinedly one breathing. One inhalation, one exhalation मिलाकर एक breathing होता है. It is just the exchange of gases between atmosphere and lungs. जबकि respiration क्या है? We already discussed one chapter respiration in plants. What is respiration? Oxidation. What is respiration? Oxidation of food molecules. Oxidation of food molecules to release energy. This is what respiration. And generally we think respiration and breathing both are synonym, लेकिन ऐसा नहीं है. Breathing is one of the initial step of respiration. Respiration करने के लिए एक step है breathing. There are total 5 steps in a respiration. In entire respiration, 5 steps. In that, breathing is one step.
Breathing is one of the step of respiration. But maximum people, they think breathing and respiration both are same. That is wrong. Both are different. ब्रीथिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन बोल सकते हैं हम. ओके, तो ये था. अभी देखिए यहां पर क्या होने वाला है. ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हाउ एनिमल्स आर डूइंग रेस्पिरेशन. इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देखिए ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोल के होता है. व्हाट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ गिल्स. अगर रेस्पिरेशन गिल्स से हो रहा है, रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ gills. Here don't confuse with bronchial respiration. ब्रांकियल बोल तो चला गया है ना. ब्रोंकियल कुछ और होता है, ये ब्रैंकियल है. ब्रोंकियल और ब्रैंकियल में डिफरेंस करो. ये BRAN है, यहां ओ कर दूं तो क्या होगा? ब्रोंकियल हो जाएगा. ब्रोंकियल का कुछ और ही मतलब है. ब्रोंकिया बोल तो एक पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का. And where do you find branchial respiration? Example is aquatic arthropoda. Aquatic arthropoda, they do branchial respiration. Even fishes also do branchial respiration. ठीक है. Next, come to the cutaneous respiration. Cutaneous respiration means respiration through skin, moist skin. Through moist skin. Through moist skin. In animal kingdom, in entire animal kingdom, which group of animals are having always moist skin? Amphibia की जो skin होती है, it's always moist. And because frogs are always present in water or near water. In water or near water, that's why their skin is very moist. तो ये cutaneous respiration आपको मिलेगा. देखिए अर्थवर्म में, इवन एम्फीबिया में भी मिल सकता है. एम्फीबिया, they also do cutaneous respiration. Coming to the pulmonary respiration. Pulmonary respiration. Respiration with the help of lungs. Through lungs. अगर respiration lungs कर रहे हैं तो बोलेंगे pulmonary respiration, and pulmonary respiration occurs in. Yes. Where do you find pulmonary respiration? Amphibians. Yes, amphibians, reptiles, birds, mammals. So many. Okay? तो ये तो जनरल जो है हायर एनिमल्स की बात हो गई है. एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा, फिशेस, एम्फीबिया, ये तो हायर एनिमल्स की बात हो गई. व्हाट अबाउट लोअर इन्वर्टिब्रेट्स? How lower invertebrates are doing respiration, like porifera, how they do respiration, coelenterata, flatworms, platyhelminthes, how they do respiration. ठीक है, तो वो भी देखेंगे यहां पर. If we talk about lower animals, sponges, coelentrates, coelenterate, flatworms, they do respiration by general body surface. They are not having any specific respiratory organ like gills और स्किन, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके पास. क्या है? जनरल, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन हो जाएगा. थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. Okay, general body surface respiration, because they are not having any specific
respiratory organs. Can you name some of the sponges? साइकॉन है, स्पॉन्जिला है, ल्यूस्पॉन्जिया है. दीज आर ऑल स्पॉन्जेस. सिलेंट्रेट्स में कुछ नाम बता दो. सिलेंट्रेट में जेली फिश है, देखिए, हाइड्रा है, गार्गोनिया है, गार्गोनिया, सी एनीमोन है, पेनाटुला है. सो व्हाई आई एम राइटिंग दीज नेम्स? एग्जाम में हो सकता है जनरल बॉडी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल. हो सकता है नाम दे दे, वहां पर नाम दे दे, हो सकता है ना. सिर्फ हम सिलेंट्रेट याद करके गए और वहां पे सिलेंट्रेट ऑप्शन में था ही नहीं. सिलेंट्रेट के एग्जाम्पल दिया था, फर्स्ट ईयर की बुक में मिलते हैं ना सिलेंट्रेट के एग्जाम्पल. और कुछ है तो बोलो. एडमसिया है, एडमसिया इज सी एनीमोन ओनली. फाइसेलिया है. Remember students here, sea anemone is also called Adamsia. Adamsia. और देखिए फ्लैट वर्म्स के कुछ नाम है तो बता दो. फ्लैट वर्म्स, टेनिया. टेनिया बोल तो टेपवर्म को बोलते हैं. टेनिया, टेपवर्म, एंड इवन लिवर फ्लूक होता है. लिवर फ्लूक आल्सो कॉल्ड फैसियोला. So remember students, these are the animals which are having general body surface respiration. They are not having any specific respiratory system. They are not having developed respiratory system. सीधा ऑक्सीजन अंदर लेना है. अब एक कोई एनिमल है, सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ एनिमल, so they take oxygen in and liberate carbon dioxide out through their general body surface. कहीं से भी, यहां से भी, कहीं से भी हो सकता है ये एक्सचेंज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. अगर क्वेश्चन पूछा है आपको अमोएबा में रेस्पिरेशन कैसे होगा, अमोएबा, तो आप बोलेंगे अमोएबा तो सिंगल सेल है. अमोएबा सिंगल सेल है. थोड़ा सा थिंक करें, ये अमोएबा है. हाउ इट डू रेस्पिरेशन? It take oxygen, liberate carbon dioxide through plasma membrane. Through plasma membrane. That means in amoeba respiration occur with the help of plasma membrane. Just plasma membrane is helping. कुछ इंट्रोडक्शन में ऐसे चीजें लिखे हुए हैं बुक में. इंट्रोडक्शन चल रहा है, हाउ एनिमल्स आर डूइंग रेस्पिरेशन. एवरीवन नीड्स ऑक्सीजन. ठीक है. Whether our respiratory system is having the ability to filter oxygen from the air? No. We are not filtering oxygen and taking oxygen. We are taking mixture of gases. We are taking mixture of gases, and then in the respiratory system, based on the partial pressure, based on the partial pressure of gases, gases are moving along the pressure gradient. हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जाते हैं. तो मतलब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर का मतलब है प्रेशर exerted by an individual gas in a mixture of gases. Pressure exerted by individual gas in a mixture of gases. अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन भी है. So in that mixture, so many gases, right? Oxygen, carbon dioxide,
सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी हैं. सो इन pressure exerted by individual 9 mmHg. दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर क्या होता है समझ रहे हैं आप. तो पार्शियल प्रेशर आगे ये चैप्टर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेनी टाइम दिस वर्ड इज गोइंग टू कम. व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? प्रेशर exerted by individual gas in a mixture of gases. Okay, we take mixture of gases, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलके जाते हैं अंदर. We are not taking pure oxygen, right? So we are taking mixture of gases, and then gases are moving inside the body along the partial pressure gradient. इसका मतलब है हमेशा गैसेस जो है हाइयर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ ही जाते हैं. अगर आपको PO2 ऑफ अल्वियोलाई का लिखना है, अल्वियोलाई ऑफ लंग्स, तो कंपलसरी लॉजिकली सोचना चाहिए आप 159 से ज्यादा तो नहीं होगा. वो क्यों? अगर लंग्स में अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन बाहर आएगा. मैं क्या बोल रहा हूं? ऑलवेज गैसेस आर मूविंग फ्रॉम हाइयर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर. तो अगर एटमॉस्फेयर की वैल्यू लिखा हूं मैं 159 mmHg ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, तो अल्वियोलाई में इससे भी कम होना चाहिए, 159 से कम होना चाहिए. हाई तो नहीं हो सकता, हाई तो नहीं हो सकता. तो कितना होगा? 104 mmHg. ओके, मिलीमीटर मर्क्यूरी. तो मैं आपको ये क्या है एग्जांपल दे रहा हूं. अभी तो मैकेनिज्म आगे आएंगे. जस्ट वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द टर्म्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, है ना. पार्शियल प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइयर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे. चलो, नो फ्रॉग में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फ्रॉग, राना टिग्रिना, एनिमल किंगडम में जो है बहुत ही, है ना, बहुत ज्यादा टाइप की रेस्पिरेशन होती है फ्रॉग में. बहुत ज्यादा टाइप्स के, ना. फ्रॉग्स डू रेस्पिरेशन बाय, फ्रॉग्स डू रेस्पिरेशन बाय स्किन से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लंग से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लाइनिंग्स ऑफ बक्कल कैविटी, लाइनिंग्स ऑफ बक्कल कैविटी, यानी तो बक्को फेरेंजियल बोलते हैं इसको, बक्को फेरेंजियल. तो फ्रॉग में रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा टाइप की है. फ्रॉग में स्किन से भी रेस्पिरेशन हो सकता है, लंग से भी रेस्पिरेशन हो सकता है, लाइनिंग्स ऑफ बक्कल कैविटी से भी हो सकता है. फ्रॉग के जो टैडपोल्स हैं, फ्रॉग्स टैडपोल्स आल्सो परफॉर्म रेस्पिरेशन बाय गिल्स. हाँ, अडल्ट फ्रॉग में तो नहीं होता गिल्स, लेकिन उनके जो लार्वा हैं, लार्वा जो हैं फ्रॉग के, टैडपोल्स बोल रहे हैं, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन बाय गिल्स. सो सेवरल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग. स्किन से भी रेस्पिरेशन हो रहा है, लंग से भी, और बक्कल कैविटी से. इफ यू पंक्चर द लंग्स ऑफ फ्रॉग, कैन फ्रॉग सर्वाइव? यस, दे कैन सर्वाइव, बिकॉज दे हैव सो मेनी ऑप्शंस. अगर लंग्स फेल हो जाएंगे तो गिल से रेस्पिरेशन करेंगे लार्वा में, स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे, बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन करेंगे. एंड रिमेंबर, इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स परफॉर्म respiration by using trachea, by using trachea. ट्रैकिया क्या होते हैं? ये एयर ट्यूब्स होते हैं, एयर ट्यूब्स.
ट्रैकिया आर द एयर ट्यूब्स. ट्रैकिया आर द एयर ट्यूब्स. वो एयर ट्यूब्स अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन को. इंसेक्ट्स में एयर ट्यूब्स हैं, स्मॉल स्मॉल एयर ट्यूब्स हैं विच टेक एयर इनसाइड. ओके, तो एनी हाउ हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे किसके बारे में? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. एंड बिफोर दैट और दो याद रख लो. लिमुलस जो होता है, किंग क्रैब, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं ये. लिमुलस किंग क्रैब परफॉर्म रेस्पिरेशन बाय बुक गिल्स. बुक गिल से रेस्पिरेशन करते हैं. अब इसको बुक इसलिए नाम दिया है, बुक, द गिल्स ऑफ द लिमुलस किंग क्रैब दे लुक्स लाइक पेजेस ऑफ बुक्स ना. बहुत सारे गिल्स होते हैं ऐसे, बुक गिल्स, इसलिए नाम दिया इसको बुक गिल्स. ऐसे ही स्पाइडर्स में, स्कॉर्पियंस में बाय बुक लंग्स होते हैं. बुक लंग्स होते हैं. ओके, ये सारा इंट्रोडक्शन हम याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फोकस करेंगे. अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कमिंग टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. So when you talk about human respiratory system, so suppose this is the neck, and after that thorax. thorax है, thorax के नीचे abdomen है. This area is thorax area, below that abdominal area. दोनों के बीच में यहां पर एक पार्टीशन होता है, मस्कुलर पार्टीशन. ठीक है, ये नेक है समझ लो. तो ये अपर एरिया क्या है? थोरैक्स है. लोअर एरिया क्या है? एब्डोमिनल एरिया है. ये थोरासिक कैविटी है, थोरैक्स बोल सकते हैं इसको, एब्डोमेन बोल सकते हैं. एंड इन बिटवीन दैट थोरैक्स एंड एब्डोमेन व्हाट इज प्रेजेंट? डायफ्राम इज प्रेजेंट. डायफ्राम. डायफ्राम क्या है? इट इज अ मस्कुलर पार्टीशन which separate thoracic cavity from abdominal cavity, and this diaphragm made of phrenic muscles. phrenic muscle से बना है ये डायफ्राम. और ये वॉलंटरी मसल है, स्केलेटल मसल है, वॉलंटरी मसल है. स्केलेटल वॉलंटरी मसल है ना. यू कैन गिव सम मोर एफर्ट्स on the diaphragm. You can do you can do forceful inspiration, forceful expiration, दोनों भी कर सकते हैं हम. You can put more pressure on the diaphragm, correct? So diaphragm up and down ऐसे मूव होते रहेंगे. कभी diaphragm down आ रहा है तो diaphragm कभी up भी जा रहा है. So just logical. If you are doing inhalation, if you are taking air inside, तो diaphragm कहां जा रहा होगा? डाउन जा रहा होगा. diaphragm नीचे जा रहा होगा. And when you do expiration, that time diaphragm is moving up, है ना? हो रहा होगा ना ऐसे. जब diaphragm अप एंड डाउन हो रहा होगा तो इसके अंदर क्या है? यहां पर थोरैक्स में लंग्स हैं. ये लंग्स हैं, ये ट्रैकिया है. When diaphragm is moving up and down, then pressure will fall on the lungs. If diaphragm is moving down, suppose, imagine diaphragm moving down, that means lungs volume are increasing. If lungs volume are increasing, pressure inside the lungs decreasing. Boyle's law है ना. वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है.
right? When diaphragm moves downward, lungs increases in volume, pressure decreases. When diaphragm moves up, lungs volume decreases, pressure inside the lung increases. देखो क्या है, साइंटिफिक जो बेसिस है ब्रीथिंग की, यहां पर एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. क्या है भाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक? 760 mm है जी. कैन यू चेंज दिस प्रेशर एवरी टाइम? कैन आई चेंज एवरी टाइम दिस प्रेशर? चेंज तो नहीं होगा ये, हर बार तो चेंज नहीं कर सकते. एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट ऑल ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. 760 mm है जी. और लंग्स के अंदर एक प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ना. सारी चीजें आपको बेसिक आइडियाज ले लेना है. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, एंड देयर शुड बी सम डिफरेंस. अगर एटमॉस्फेयर में भी 760 है, लंग्स के अंदर भी 760 है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दैट इज डेड पर्सन. डेड पर्सन में कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहे. तो बाहर जितना 760 है, लंग्स के अंदर भी 760 है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा. दैट मीन देयर शुड बी सम डिफरेंस, मे बी लोअर देन 760 या हाइयर देन 760, दोनों भी चलेगा. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर दो हो सकते हैं, 758 mmHg भी हो सकता है, 762 mmHg भी हो सकता है. अब आप लॉजिकली सोच के आंसर दे दो. when you are doing inspiration, yeah, yes, everybody do inspiration, inspiration करने के वक्त air moving inside your lungs, that means air is moving from higher atmospheric pressure to lower intrapulmonary pressure. That means during inspiration, what is the pressure inside the lungs? 758 mmHg. 762 तो नहीं हो सकता इंस्पायरेशन के टाइम में. and when you are doing expiration, during expiration air is moving out of the lungs. एयर इज मूविंग आउट ऑफ द लंग. दैट मीन्स एक्सपायरेशन के टाइम में 762 ही चलेगा ना, 758 तो नहीं चलेगा. when you are doing expiration, air is moving out of the lungs, right? ये सारे डायग्राम बना लिए आप सब लोग. चैप्टर हेल्प करेगा ना, चैप्टर में समझने के लिए सारे चीजें हेल्प करने वाले हैं वर्ड्स. Now let's focus on the diagram. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, फ्लो चार्ट बनाएंगे. पार्ट्स कौन कौन से हैं, टोटल पार्ट्स. If I talk about what are the parts of human respiratory system, तो human respiratory system start हो रहा है nostril से. Nostrils open into nasal cavity. Nasal cavity opens into, ठीक है, pharynx. Pharynx open into, ठीक है, larynx. Larynx open into trachea. Trachea open into primary bronchi, and primary bronchi open into secondary bronchi. Secondary bronchi open into tertiary bronchi, and tertiary bronchi open into initial bronchiole, and initial bronchiole opens into terminal bronchiole. Terminal bronchiole opens into ducts of alveoli, or ducts of alveoli opens into alveoli. Last terminal part of the human respiratory system, terminal part है alveoli.
एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप बोलेंगे सर आप लंग्स के बारे में लिखे ही नहीं, है ना? लंग्स कहाँ है यहाँ पर? तो सुनिए, क्या होता है ना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये ट्रैकिया है, ये वाला पार्ट ट्रैकिया है। ट्रैकिया डिवाइड कर गया, प्राइमरी ब्रोंकाई बन गए। अब प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर चले जाएंगे, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई। अब अंदर सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा, सब बनेगा अंदर ही लंग्स के अंदर, इवन अल्वियोलाई भी लंग्स के अंदर ही। दैट मीन्स फ्रॉम प्राइमरी ब्रोंकाई टू लास्ट पार्ट, primary bronchi to last part, it is present in inside the lungs only. प्राइमरी ब्रोंकाई से लास्ट पार्ट अल्वियोलाई तक पूरा लंग्स के अंदर ही होगा। ओके, अब यहां पे याद रख लीजिए आप दो चीजें हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके साथ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। लाइक दैट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कंडक्टिंग जोन, एक्सचेंज जोन। कंडक्टिंग जोन मतलब विच कंडक्ट एयर, नॉस्ट्रेल से एयर अंदर जा रही है, नाजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, पूरा यहां तक जो है ना कंडक्टिंग जोन है, टर्मिनल ब्रोंकियोल। नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल is called conducting zone, conducting zone। फंक्शन बताने की जरूरत नहीं है, कंडक्टिंग जोन नाम में लिखा हुआ है। कंडक्टिंग जोन मींस इट कंडक्ट एयर, इट ट्रांसफर्स एयर। नॉस्ट्रिल से होते हुए एयर नाजल कैविटी में जाना है, वहां से फेरिंग्स में, वहां से लैरिंग्स में, दैट इज द फंक्शन कंडक्टिंग जोन। फिर भी हम लिख सकते हैं कंडक्टिंग जोन्स के फंक्शंस क्या क्या है। नंबर वन, कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है, देखिए, इट फिल्टर्स एयर, इट फिल्टर्स एयर, इट रिमूव डर्ट, डस्ट, जो भी हो सकता है एयर के साथ जो अंदर जा रहे हैं उसको कैच करना। कंडक्टिंग जोन रिमूव डर्ट, डस्ट, पार्टिकल्स, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, इट ह्यूमिडिफाइज एयर, ह्यूमिडिफाइज एयर, ह्यूमिडिफाइज मतलब एयर में थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करता है ये कंडक्टिंग जोन। हो सकता है हम जो है कहीं पे ब्रीथिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्राई एयर हो, बहुत ज्यादा ड्राई एयर हो, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, उतना ज्यादा ड्राई एयर अंदर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। सो दैट्स वाई, तो ड्राई एयर को पहले अंदर लेके ह्यूमिडिफाई करना है, उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा ऐड करना है। रिमूव डर्ट, डस्ट पार्टिकल, ह्यूमिडिफाइज एयर, ठीक है। और कोई फंक्शन हो सकता है, इट ब्रिंग्स एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, इट ब्रिंग्स एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है। एयर का भी टेम्परेचर अब 37 डिग्री ही होना चाहिए जो बॉडी टेम्परेचर है। हो सकता है जहां पे आप ब्रीथिंग कर रहे वहां पर टेम्परेचर हाई हो, लेकिन एयर को अंदर लेकर 2-3 डिग्री लो करना है एयर को टेम्परेचर। इट ब्रिंग्स एयर टू दी बॉडी टेम्परेचर, वो भी लिख दिया आप। दिस इज अबाउट कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन। सिंपल यहां पे मिस्टेक करते हैं कई बच्चे, कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन, एक्सचेंज जोन, इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं। कंडक्टिंग जोन क्लियर है, कहां से कहां तक,
नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्टिंग जोन है। अब लिखिए नेक्स्ट, डक्ट्स ऑफ अल्वियोलाई एंड अल्वियोलाई, डक्ट्स ऑफ अल्वियोलाई एंड अल्वियोलाई, ducts of alveoli and alveoli is called exchange zone। एक्सचेंज जोन बोलो आप उसको, या नहीं तो रेस्पिरेटरी जोन बोलो। एक्सचेंज जोन बोलो या रेस्पिरेटरी जोन बोलो, क्यों बोल रहे हैं भाई इसको? It is called exchange zone because gases are actually exchanging with the blood at alveoli। आपने जो भी ऑक्सीजन अंदर गया है ट्रैकिया से होते हुए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ब्लड के साथ एक्सचेंज होना है। दिस इज अल्वियोलाई। सपोज अल्वियोलाई दे लुक लाइक एयर सैक्स, स्मॉल बलून्स, एयर सैक्स, और अल्वियोलाई के अतराफ में ना ब्लड होता है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं। अल्वियोलाई के अतराफ में क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज होते हैं। तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में आएगा, ऑक्सीजन अल्वियोलाई से निकल के ब्लड में जाएगा। दिस इज व्हाट एक्सचेंज जोन, यही है एक्सचेंज जोन। व्हाट इज एक्सचेंज जोन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वियोलाई एंड ब्लड। अल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज जोन। Alveoli and blood, in between them exchange of gases are occurring. Oxygen is moving from alveoli to blood and carbon dioxide is moving from blood to alveoli। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? कुछ पूछना है? एवरीथिंग क्लियर? सो जो भी आप एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, दैट ऑल ऑक्सीजन फर्स्ट मूव इनटू द alveoli and from alveoli oxygen enter into the blood। Now blood carry that oxygen, blood carry that oxygen and move into the heart, then heart pumps blood to all body parts। समझ गए? फर्स्ट ऑक्सीजन अल्वियोलाई में आया, अल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से हार्ट में, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्स है ना टू ऑल बॉडी पार्ट्स, टू द ब्रेन, टू द किडनीज, टू एवरी पार्ट। ठीक है, क्लियर है? यस। और एक बात यहां पर, फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल, from trachea to initial bronchiole they are covered with C-shaped cartilaginous ring। मतलब यहां पे नेक में जो ट्रैकिया है ना, एयर पाइप है, इसको सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एयर पाइप। इट कैन डैमेज if you fall down suddenly, some accident happens, right? There should be some support, it should not collapse immediately। जैसे कोई बोन ब्रेक हो गई, ठीक है, बोन ब्रेक हो सकते हैं तो फिर रीसील भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गए तो मुश्किल है ना, एयर ट्यूब। इसलिए यहां पे क्या करे गॉड जो है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग रख दिए हैं यहां पर, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, सो दैट ट्रैकिया शुड नॉट कोलैप्स, शुड नॉट कोलैप्स। ठीक है, यहां पे कोई प्रेशर डाल दिया, यहां पर प्रेशर डाल दिया ट्रैकिया के ऊपर, तो कुछ ना कुछ उस पर सपोर्ट चाहिए ना, तो सपोर्ट के लिए क्या है? सी शेप कार्टिलेज के रिंग्स हैं। कंप्लीट ओ शेप नहीं है, ऐसे नहीं है रिंग्स, हो ऐसे रिंग्स हैं, सी शेप रिंग्स हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स हैं वो। ये सामने की तरफ पूरा वेंट्रल साइड, ये पूरा ट्रैकिया, ट्रैकिया से नीचे प्राइमरी ब्रोंकाई के ऊपर भी रिंग्स हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई पे भी हैं, टर्शरी ब्रोंकाई पे भी हैं, वही तो बता रहा हूं ना मैं, अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल तक हैं। लिखो फ्रॉम ट्रैकिया टू, from trachea to initial bronchiole C shape incomplete
incomplete cartilaginous ring. Incomplete cartilaginous rings are present. C-shaped incomplete cartilaginous rings are present. They protect trachea from collapse. They protect trachea from collapse. Protect trachea from collapse. हो सकता है कभी भी कोलैप्स हो जाएंगे, तो इसलिए गॉड क्या करे, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग रखें, इनकम्प्लीट रिंग्स रखें. डॉर्सल साइड नहीं चाहिए हमको वो रिंग्स, कोई यूज नहीं है, क्योंकि डॉर्सल साइड पीछे है ना, बैकबोन आ जाता है, प्रोटेक्शन वहां मिल रहा है, तो क्या करेंगे, ओ शेप नहीं है, सी शेप ही है रिंग वो. अब यहां पे क्या होता है ना, एग्जाम में स्टेटमेंट्स बन जाते हैं. C-shaped cartilaginous rings are present from trachea up to terminal bronchiole. Statement right or wrong? Wrong. टर्मिनल ब्रोंक्यूल नहीं आना, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ही आना. कंडक्टिंग जोन कहां तक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक है. मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 90% स्टूडेंट रॉन्ग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कंडक्टिंग जोन कहां तक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक है. सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक. जरा अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो 100% मिस्टेक हो जाता. नाउ लेट्स ड्रॉ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. So first here epiglottis, you can see the lid like structure, epiglottis, below that larynx, below that larynx, and larynx leads to trachea. अब मैं वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं बताया, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी है, उसके बाद फेरिंग्स है, वो समझ जाना आप. ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर मैं अभी अभी बता के आया, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग ऐसे ड्रॉ कर देंगे. ये ट्रैकिया है. ट्रैकिया देन डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस पे भी रिंग्स बना दो. Now each branch is called bronchus. सिंगुलर में ब्रोंकस, अगर प्लूरल में बोलेंगे तो ब्रोंकाई. मतलब ये प्राइमरी ब्रोंकाई है. ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो है लंग्स के अंदर चले गए. देखिए ये एक लंग्स, पिरामिड शेप के लंग्स होते हैं. One lung, then there is another lung. So this is what branch of the trachea. What do you call this branch of the trachea? It is called, सिंगुलर में ब्रोंकस बोलिए, ये प्लूरल में बोलना है तो ब्रोंकाई बोलिए. अब ये लंग्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर भी चाहिए. प्रोटेक्टिव कवर इज नीडेड अराउंड द लंग्स. So coverings around the lungs are called pleura. Coverings of the lungs, pleura बोले इसको. And just below the lungs, what is the muscular partition? This muscular partition we call it diaphragm. अभी अभी मैं बता के आ रहा हूं डायफ्राम का फंक्शन क्या है. Diaphragm is moving up and down. It is moving either up or it is moving down.
When it moves down, there will be more space available for lungs. Volume of the lung increases. And when diaphragm moves up, volume of the lung decrease हो जाता है. ठीक है. And in between the lungs, the area is having heart. The space in between the lungs, where heart is situated, that area, it is called mediastinum. क्या बोलते हैं? Mediastinum. Heart in कहां पर है? मेडियास्टिनम. ये स्पेस का नाम है, वो जगह का नाम है. मेडियास्टिनम मतलब it is the space between the lungs where heart is situated. Mediastinum. And these lungs are very very delicate structure. कितने डेलिकेट? डेलिकेट बोलते कितने डेलिकेट? बलून्स. एयर बलून्स में हम एयर फिल कर दिए, उसको एक पिन मार देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा. लाइक दैट टाइप ऑफ बलून्स. वेरी डेलिकेट, राइट. और जरा सा भी पंक्चर हो गया तो रीसील नहीं कर सकते इसको, फिर मुश्किल है फिर. सो दैट्स वाई बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए. सो मच ऑफ डेलिकेट स्ट्रक्चर. सपोज यहीं से कहां पे थोड़ा सा पंक्चर हो गया और एयर लीक होना शुरू हो गई, समझो. एयर लीक होना शुरू हो गया तो अंदर प्रेशर नहीं बनेगी तो डायफ्राम मूव नहीं होगा तो ये ब्रीथिंग ही नहीं होगी फिर. इसलिए लंग्स है ना, बहुत ही एयर टाइट चेंबर में वेल सिक्योरिटी होना चाहिए बहुत ज्यादा. तो इसलिए लंग्स को क्या करें, यहां पे गॉड जो है रिब्स लगा दिए. रिब्स हैं यहां पर. कट एंड्स ऑफ द रिब्स. मैं कंप्लीट रिब्स नहीं बता रहा हूं. कट एंड्स ऑफ द रिब्स मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट कर दिए हम, है ना. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर ऐसे कट करेंगे तो ऐसे रिब्स ऐसे दिखेंगे. अदरवाइज पूरे रिब्स यहां से लेकर यहां तक रिब्स रहेंगे, दोनों साइड के रिब्स. और दो रिब्स के बीच में स्पेस जो है, दैट स्पेस इज हैविंग वन मसल. व्हाट इज द मसल? इंटरकोस्टल मसल्स. In between the ribs, what is present? Intercostal muscles. कल की क्लास जो है ना वो समझना है तो ये सारे चीजें आना. देखिए इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, ये सब आना, तब समझने आएगी कल की क्लास. इंटरकोस्टल मसल्स. ओके. So, as I told, atmosphere is having 760 mmHg और लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हम इंट्रा प्लूरल प्रेशर, और इंट्रा पल्मोनारी प्रेशर जिसको बोल रहे हैं हम, वो इंट्रा पल्मोनारी प्रेशर आइदर 758 बोला मैं या 762 बोला. हाउ दैट प्रेशर चेंजेस? प्रेशर चेंज बिकॉज ऑफ वॉल्यूम चेंज. या तो लंग्स में प्रेशर 758 रहना या तो लंग्स में प्रेशर 762 रहना. हाउ दैट प्रेशर चेंज? दैट प्रेशर चेंज बिकॉज ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स. ये दोनों मिलके काम करते हैं. वॉल्यूम चेंज करना है ना, वॉल्यूम चेंज करे तो प्रेशर चेंज ना. तो वॉल्यूम कैसा चेंज करेंगे? बाय यूजिंग डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल. ये दो यूज करके प्रेशर चेंज कर लेंगे. प्रेशर चेंज कर लिया तो ऑटोमेटिक हो जाएगी ब्रीथिंग, राइट. एयर रशेस इनटू द लंग्स व्हेन प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीज.
तो वॉल्यूम चेंज करो बस है वो प्रेशर कल बताऊंगा मैं आपको. डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेंजिंग द वॉल्यूम. बुक में क्या लिखा है वर्ड्स मालूम. चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity is immediately reflected on the volume of lungs. अगर थोरासिक वॉल्यूम जरा सा भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, या थोरासिक वॉल्यूम, इफ आई मूव माई रिब्स अपवर्ड स्लाइटली, थोड़ा सा ब्रीथिंग फास्ट करके और फोर्सफुल ब्रीथिंग करके मैं जो है रिब्स को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊंगा और डायाफ्राम नीचे चले जाएंगे, दैट टाइम इमीडिएटली द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity immediately reflected in change in वॉल्यूम ऑफ लंग्स. जैसे आप स्टडीज अच्छा करेंगे, 14 आवर्स पढ़ेंगे, तो इमीडिएटली उसका रिफ्लेक्शन आपके मार्क्स के ऊपर दिखेगा, है ना. स्टडीज बराबर हो रहे हैं तो मार्क्स बराबर आ रहे हैं, स्टडीज खराब हो रहे हैं तो मार्क्स खराब हो रहे हैं. तो ऐसा है, अगर डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द लंग इंक्रीज हुआ. वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स ये मसल चेंज हुए तो लंग्स भी चेंज होता. ठीक है, ओके, लाइक दैट. नाउ इनसाइड द लंग्स this primary bronchi divide and form two branches, secondary bronchi. अब देखो सिर्फ इधर, primary bronchi divide inside the lung and form secondary bronchi. Secondary bronchi divide and form tertiary bronchi. Tertiary bronchi divide and form initial bronchiole. Initial bronchiole divide and form terminal bronchiole. Terminal bronchiole divide and form ducts of alveoli, and ducts of alveoli open into air sacs. अल्वियोलाई हर जगह वैसे ही करो. ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होके टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल डिवाइड होकर टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल डिवाइड हुआ तो डक्ट्स ऑफ अल्वियोलाई, डक्ट्स ऑफ अल्वियोलाई डिवाइड होकर अल्वियोलाई में चले जाते. सेम ऐसे एवरीवेयर ऐसे ही डिवाइड कर लेते चले जाना. Now it looks like a tree. Now it looks like a tree. ऐसा ट्री के जैसा दिख रहा है, ये ट्री की तरह दिख रहा है ना. यस. अब यहां पे भी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, सेकेंडरी में भी है, टर्शरी में भी है. हाँ, इनिशियल ब्रांकियोल तक है, बोला मैं कार्टिलेजिनस रिंग इनिशियल ब्रांकियोल तक है. टर्मिनल ब्रांकियोल पे नहीं है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग. सेम यहां पे भी वैसे. एक बार और समझने का मौका. प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड एंड फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड एंड फॉर्म टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड एंड फॉर्म इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल डिवाइड एंड फॉर्म टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल डिवाइड करके डक्ट्स ऑफ अल्वियोलाई, डक्ट्स ऑफ अल्वियोलाई जाएंगे, अल्वियोलाई में ओपन हो जाएंगे. सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स यहां तक लगा दी बस. अब इतना समझने के बाद कुछ भी नहीं है, ट्विस्ट नहीं कर सकता, पूरा समझने आ गया आपको. और ट्विस्ट कैसा कर सकते हैं. क्वेश्चन आया, ट्रैकिया टर्मिनेट्स एट, ट्रैकिया टर्मिनेट्स एट मतलब ट्रैकिया कहां पे खत्म होगा. प्राइमरी ब्रोंकाई पे खत्म होगा. ट्रैकिया कहां पे खत्म होगा. प्राइमरी ब्रोंकाई. वेयर प्राइमरी ब्रोंकाई टर्मिनेट सेकेंडरी ब्रोंकाई. ट्रैकिया टर्मिनेट, एक लिख लिया तो बस ना. ट्रैकिया टर्मिनेट्स एट, terminates at, trachea terminates at primary bronchi. What is the terminal end of the respiratory system. alveoli लास्ट में आ रहे हैं, alveoli alveoli लास्ट में आ रहे हैं. और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा,
जैसे हम ट्रैकिया से अंदर 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 जा रहे हैं ना, डायमीटर कम कम होते जा रहा है, डायमीटर कम होते जा रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज हैविंग नैरोएस्ट डायमीटर? नैरोएस्ट डायमीटर अल्वियोलाई ऑप्शन में रखना जरूरी नहीं है हमेशा. डक्ट्स ऑफ अल्वियोलाई भी नहीं रहा तो टर्मिनल ब्रोंकियोल. समझ गए? टर्मिनल ब्रोंकियोल भी नहीं रहा तो इनिशियल ब्रोंकियोल. मैं एक आंसर नहीं लिखा सकता ना इधर, मुश्किल वो है. ठीक है. सो एज वी मूव डाउन फ्रॉम ट्रैकिया अप टू द ducts of alveoli, diameter become narrowest. Diameter decreases as we move down from trachea. लिखो diameter goes on decreasing. Diameter goes on decreasing as we move down, as we move down from trachea, as we move down from trachea. ट्रैकिया से जैसे आप नीचे गए, प्राइमरी ब्रोंकाई डायमीटर थोड़ा सा कम हो जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई का उससे कम हो जाएगा, टर्शियरी ब्रोंकाई उससे कम हो जाएगा. समझिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है. अब वेरी वेरी कंफ्यूजिंग तो वही है, कंडक्टिंग जोन कौन सा है, रेस्पिरेटरी जोन कौन सा है, और सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग कहां से कहां तक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और एक बात, ट्रैकिया डिवाइड्स, वेयर ट्रैकिया डिवाइड, ट्रैकिया नेक में से आ रही है, देखो यहां पर, ट्रैकिया डिवाइड्स एट मिड थोरासिक कैविटी, मिड थोरासिक कैविटी एट फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे. मतलब ट्रैकिया नेक से पास होते हुए नीचे आएगी, यहां थोरैक्स में बीचों बीच थोरैक्स के ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगी दो ब्रांचेस में एट मिड थोरासिक कैविटी. मिड थोरासिक कैविटी भी बोल सकते हैं, या एग्जैक्ट लोकेशन, इफ यू वांट टू टेल एग्जैक्ट लोकेशन इज एट फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे. लिखो, ट्रैकिया डिवाइड्स एट मिड thorax at fifth thoracic vertebrae. फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे. कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये थोरासिक वर्टिब्रे क्या है? थोरासिक वर्टिब्रे, thoracic vertebrae is the part of backbone. बैकबोन में जाना पड़ेगा आपको, बैक साइड बैकबोन. बैकबोन नेक में है, थोरैक्स में है, एब्डोमेन में भी है बैकबोन. करेक्ट. तो थोरैक्स के अंदर 12 पीसेस हैं. कितने पीसेस हैं बोन के? थोरैक्स, जो थोरैक्स के पीछे जो है ना, ये चेस्ट रीजन के जो पीछे बैकबोन आ रही है ना, उसमें थोरैक्स में 12 पीसेस हैं बोन्स के. 1 2 3 4 ऐसे 12 पीसेस हैं. तो वो 12 पीसेस में से कौन सी बोन है? वो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे. एट फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे डिवाइड. ओके. सो और जो भी फर्दर डिटेल्स हैं कंटिन्यू करेंगे टुमारो. थैंक यू.